So dear students, today I will solve some questions of exercise 8.2, chapter application of integrals, class 12th maths NCERT. See question number 1, exercise 8.2. Question is like this: find the area of the circle. Find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is interior to the parabola x square equal to 4y. So this is the question, and we have to find the area of this circle. So now we come to first we draw the diagram. Here 4x square plus 4y square equal to 9. This is the equation of circles. Changing into standard form, dividing by 4 you will get x square plus y square equal to 9 upon 4. So comparing this with x square plus y square equal to a square, center is 0, 0, radius is 3 by 2, because 9 by 4 is square of 3 by 2. And this parabola x square equal to 4y is similar to x square equal to 4ay, which is upward parabola. So upward parabola is equation number 2. So now you have to draw the diagram and then see the, first we draw the circle. This is a circle whose center is at origin. And this point will be 3 by 2, 0. As radius is 3 by 2. Next is the circle, this parabola, upward parabola. So upward parabola means it is like this. This type of curve we have to draw. So now you have to find this region, total area of the circle which is inside the parabola. So this is the region you want to find, total region. And due to symmetry, both these will be equal. You can name these points O. Let this point be A, B, C, D. So now this is the total area, required area is this. So now we have to calculate the area. So this area you can write in the form of difference of two curves. तो पहले आपने सर्कल को इक्वेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया, 4 से डिवाइड करके, और उसे कंपेयर करने पे सेंटर आपको 0, 0 मिल गया, रेडियस 3 by 2 मिल गया, और ये अपवर्ड पैराबोला है, ये इस तरीके का कर्व हो गया. अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे. तो ये इक्वेशन आप लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 by 4 फर्स्ट इक्वेशन, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y second equation. So required area is equal to area of shaded region, So this you can write as 2 times this area
2 times area OBCO, area in the first quadrant, and this you can write as 2 times y1 minus y2 dx with proper limits of integration. And what will be the limits of integration? For that you have to solve these two equations. So from 1 and 2, putting value of x square here, you will get x square plus, putting the value of this x square is 4y, so simply we write y square plus 4y equal to 9 by 4. So multiplying by 4 you will get 4y square plus 16y minus 9 equal to 0. And now factorize this, 4y square plus 18y minus 2y minus 9 equal to 0. So factorizing this you will get 2y common, 2y plus 9, minus 1 common, 2y plus 9. So this you get as 2y plus 9 one factor, 2y minus 1 other factor, and this implies y is equal to either 1 by 2 or minus 9 by 2. These are two values of y which we get. तो इस तरह से एरिया आपको जो फाइंड करना था सर्कल का, फाइंड करना था एरिया, वो एरिया सर्कल का जो पैराबोला के अंदर आता है, तो ये आपका शेड एरिया होगा। और सिमेट्री की वजह से जितना एरिया एक्स वाई एक्सिस के राइट में उतना लेफ्ट में भी होगा, इसलिए आपका दोनों एरिया इक्वल होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप बाय सिमेट्री एरिया ODCO इज इक्वल टू एरिया OBCO। इस तरह से आपका ये दोनों एरिया इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पर कोई एक एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से रिक्वायर्ड एरिया का मतलब ये पूरा एरिया और इस एक एरिया का डबल कर देंगे। तो इसके लिए y1 माइनस y2 का आपको डिफरेंस आपका y1 क्या है, यहाँ पर ये y1 है आपका, ये जो कर्व है आपका, जो ऊपर वाला कर्व है सर्कल, ये y1 है आपका, और ये y2, ये ध्यान रखना आपको। तो y1 गिवन बाय इक्वेशन 1 अपर कर्व आपको सर्कल है, तो y2 लोअर कर्व। अब लिमिट क्या होगी, लिमिट के लिए आपको इन दोनों में से आपको देखना है। तो लिमिट के लिए और आगे चलते हैं। तो ये आपका एरिया 2 टाइम्स तो है ही आपका। अब यहाँ लिमिट आपको फाइनल कर लेना है। तो हियर वी गेट टू वैल्यूज ऑफ y, y इज इक्वल टू माइनस 9/2 रिजेक्टेड, क्योंकि y इक्वल टू माइनस 1/2 रखेंगे तो x स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा इसमें। एज इट मेक्स y स्क्वायर नेगेटिव इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 में आपका y की वैल्यू अगर आप रखते हैं ये माइनस 9/2, x स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। ये x स्क्वायर होगा, यहाँ पे y स्क्वायर नहीं होगा, x स्क्वायर नेगेटिव इन इक्वेशन 2। तो इसलिए आपको सिर्फ यही वैल्यू रखना है, y इक्वल टू पुटिंग y इक्वल टू 1/2 इन 2, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4/2, दैट इज 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो x की ये दो वैल्यू आ गई, तो ये पॉइंट आपको मिल गया। b पे आपका √2 होगा, 1/2, y तो 1/2 है, और ये पॉइंट आपका होगा -√2 और y 1 सेम वैल्यू रहेगी। ये दो पॉइंट आपको मिल गए, इसी पॉइंट से काम है यहाँ पे। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि लिमिट क्या होगी। लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 0 है, 0 से √2 का लिमिट होगा आपका। इस तरीके से ये इन इक्वेशंस को सॉल्व किया गया। 1 और 2 को यहाँ पर सॉल्व किया गया, दो वैल्यूज मिली है आपको, y इक्वल टू 1/2 और माइनस 9/2। अब इसमें माइनस 9/2 रिजेक्ट हो रहा है। क्यों रिजेक्ट हो रहा है? क्योंकि इसको अगर आप रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो इससे आपका ये निगेटिव आ जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पे भी रखेंगे तो भी यही होगा। किसी भी इक्वेशन में आप रख के लीजिए तो निगेटिव ही आएगा, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर पॉजिटिव वैल्यू का आपको लेना है, पॉजिटिव वैल्यू रखा है आपने, तो इससे आपको वैल्यू मिल गई x की प्लस माइनस √2। इस पॉइंट b के लिए √2 होगा और d के लिए -√2 होगा। अब आपका ये लिमिट मिल गया 0 से √2, क्योंकि खाली इतना एरिया आप निकाल रहे हैं OBCO के लिए। तो अब इसको कैलकुलेट
कर लेना आपको आगे। तो अब आपको वैल्यूज रखना है 2 टाइम्स y1 का मतलब जो आपका सर्कल का इक्वेशन था x² + y² = 9/4। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना आपको। y की वैल्यू आ जाएगी 9/4 - x²। ये y की वैल्यू हो गई y1। और y2 आपका जो था पैराबोला है x² = 4y। ये पैराबोला था सेकंड इक्वेशन आपका। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है यहाँ पर। यहाँ से y1 मिला आपको, यहाँ से y2 मिलेगा। -y2 की वैल्यू x²/4, ये पूरा आपको इंटीग्रेट करना है dx, y1 - y2 dx। लिमिट आपकी 0 से √2 की रहेगी, लिमिट में 0 to √2। अब आगे इसको इंटीग्रेशन करना है, 2 टाइम्स से रहेगा ही। अब इसको पूरा इंटीग्रेट कर देना है आपको। रूट ऑफ इसका माइनस x² का फॉर्मूला लगाएंगे, x/2 √9/4 - x² प्लस a²/2 9/8 साइन इनवर्स x/a x/3/2। ये इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस x³/3 which will become x³/12 because 4 is already present here। इस तरह से आपका ये 0 to √2 के बीच में ये अब लिमिट अप्लाई करना है इसमें आपको। सो नाउ अप्लाई द लिमिट, put x = √2, so this area is equal to 2 times तो करना ही आपको। लिमिट अप्लाई करिए, x √2 रखेंगे, √2/2 9/4 - 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2/3 √2 माइनस x³ is 2 √2 upon 12, and at lower limit value will be 0 because x is 0, this will also be 0, this is also 0। तो लोअर लिमिट पे सारी वैल्यू आपकी 0 आएगी। सिंपली आपको यही करना है। अब इसको आपको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और। 2 टाइम्स √2/2 and this is root of 9 - 8/4 1/2 plus 9/8 sin inverse 2 √2/3 minus this is √2/6। Now we can multiply this inside। So this is equal to, if you multiply this √2 inside, you will get √2/2 plus 9/4 sin inverse 2 √2/3 minus √2/2/6 will be 3। And now simplify this, √2 minus √2 will be common, 1/2 minus 1/3 plus 9/4 sin inverse 2 √2/3, this will be equal to √2/6 plus sin inverse 2 √2/3। This is the final expression, square units। This is the answer। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मेनली आप प्रॉपर डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेना है, जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ देखा आपने 2 वैल्यूज मिली, उसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, 1/2 आया, उससे फिर x की वैल्यू निकाला, उससे आपको लिमिट पता चला। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन कर देना। अपर लिमिट पे वैल्यू आपकी आ रही है, लोअर लिमिट पे वैल्यू सारी 0 है, इसलिए लोअर लिमिट पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करते चलना है और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।